India's data privacy framework, which tried to operationalize Digital Personal Data Protection Act through draft rules. The DPDP Protection Rules 2025, as as analyzed by different June policy explainers, propose graded compliance for startup and MSMEs, a digital by design data protection board of India, which is very important to note. Data Protection Board of India for consent and grievance redressal. It structured erasure timelines and conditional cross-border data flows, suggesting an operational turn towards scalable risk privacy governance. Very important, easy to understand. Then practitioner guides note that significant data fiduciaries would bear heightened obligations, with consent managers introduced as regulated intermediaries and a focus on purpose limitation, storage limitation, and accountability consistent with DPDP Act principles and prior consultation drafts in January 2025. So, what is important to understand is that डेटा फिड्यूशरीज बनाए जाएंगे, ज़्यादा उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको बढ़ाया जाएगा और उनको रेगुलेट किया जाएगा इवेंचुअली इन रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन पर्पसेस, स्टोरेज के पर्पसेस के लिए एंड अकाउंटेबिलिटी के पर्पसेस के लिए, कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग DPDP एक्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या टेक्निकल पॉइंट समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. फॉर लॉ एंड टेक केसेस, frame the rules as compliance layer, translating rights into procedures, and assess interoperability with sectoral norms in finance, health, and telecom, given India's federal regulatory landscape. Simple. Digital competition law, ex ante versus ex post, 2025 policy trajectory. Ex ante का मैंने आपको बता दिया था concept. Following intense stakeholder engagement after Committee on Digital Competition Law 2024's report, June policy discourse reflected a cautious approach to ex ante obligations for systematically significant digital enterprises, which is SSDEs. Right? With subsequent reports indicating government openness to further study a potential rescoping of ex ante elements to avoid chilling innovation at the same time as well. So what the Kavi is trying to say here, कि जो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल प्राइजेज हैं, फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स में अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल आप जोमेटो स्विगी ले लीजिए, ठीक है, उनके लिए एक्स एंटे ऑब्लिगेशंस का क्रिएशन हुआ है. ऑब्लिगेशन थ्रू वो एक एंटी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ही है, एंटी ट्रस्ट लॉ का कॉन्सेप्ट ही है, एंड वी हैव टू रेगुलेट दैट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. Think tank and practitioner analysis caution that blanket prohibitions risk overreach, absent legitimate business justification defenses, and may displace effects-based inquiry under Competition Act's ex post framework, while others argue ex ante baselines are needed to address tipping and self-preferencing in digital ecosystems. तो काफ़ी सारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने क्या सोचा है इस विषय के लिए, जो डिजिटल कंपटीशन लॉ है जिसका एक्स एंटे की हम बात भी कर रहे हैं, कि उन्होंने सोचा है कि ये जो ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस हैं वो ओवररीच का रिस्क देते हैं. ठीक है, एंड दे आर एब्सेंट इन लेजिटिमेट बिजनेसेस विच विल इवेंचुअली लेजिटिमेट बिजनेस जस्टिफिकेशन डिफेंसेस. दैट इज़ द होल पॉइंट. एक्स एंटे रेगुलेशंस का मतलब यही होता है. एक्स एंटे रेगुलेशन, जस्ट सेकंड, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. एक्स एंटे मतलब एक फोरकास्ट जो होता है ना चीज़ों का, फोरकास्ट रेगुलेशन, उस पे बेस्ड हैं ये चीज़ें. एक्चुअल में नहीं हुई हैं ये चीज़ें, एक्चुअल में नहीं हुई हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है. For exam and answers situate India's incremental posture within global experimentation on gatekeeper regimes linked with CCI settlement and commitment mechanisms, and propose calibrated thresholds with safe harbors and proportional remedies at the same time. Right. Then we have refugee law.
देखिए मैंने ना एक टेबल बनाई है जो हमने पढ़ा है ना अभी तक उस चीज़ के लिए। डोमेन क्या है रेफ्यूजी लॉ का, एचसीआर के ग्लोबल ट्रेंड्स की हमने बात करी, रिपोर्ट्स जो आई थी, ठीक है। ये मैटर क्यों करती हैं? इट एंकर्स ग्लोबल प्रोटेक्शन बर्डन्स एंड यूनिफॉर्म्स डोमेस्टिक असाइलम रेफ्यूजी पॉलिसी। सिंपल। आईसीसी का एक साइबर अटैक हुआ था, हाईलाइट साइबर सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इंस्टीट्यूशंस। डब्ल्यूटीओ की हमने क्या बात करी थी? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में हमने बात करी थी जो पेरिस में हुई थी। एससी और सीआरपीसी के एविडेंस की बात करी थी हमने। नो इनवॉलेंटरी नार्को एनालिसिस 20 क्लॉज 3 एंड 21 की लिमिट्स बताता है। हरिनगर शुगर के केस में राइट टू क्लोज बिजनेस वॉज रिकग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(g। सेबी का प्रोस्पेक्ट, आईपीओ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डिलिस्टिंग के जो रिफॉर्म्स थे वो हमने बात करी थी सेबी में। एससी के एडमिन अमेंडमेंट रूल्स आए थे वर्किंग आवर्स के लिए। देन लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट आया था। सब नेशनल इंक्लूजन की बात करी थी और मॉडर्नाइजेशन हुआ चीज़ों में, तो ये हमने बात करी थी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या हैं अब आप पे डिपेंड करता है आप अपनी खुद से मेहनत कितनी करनी चाहते हैं। इसके लिए आपका बेस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बेस सिर्फ करंट अफेयर से नहीं आपको इसकी नॉलेज क्रिएट होगी, बेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। critically examine constitutional limits on scientific investigative techniques with reference to Article 23 and June 25 decision prohibiting involuntary narco-analysis and discuss implications for admissibility and fruit of tree doctrines. Simple. 19(1)(g का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। यस, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की बात करें। In June 2025, the Supreme Court held that involuntary narco analysis is permissible with judicial oversight, permissible if police contest is recorded, impermissible under Article 23 and 21। इसका आंसर यही है। आंसर साथ साथ लिखे हुए हैं, तो अभी मैं इसी तरीके से प्रिपेयर कर पाया था आप लोगों के लिए। 2010 बॉडी मीटिंग हुई थी सेबी की। एचसीआर के ग्लोबल ट्रेंड्स में भी हमने बात करी थी। 123.2 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं। राइट टू क्लोज बिजनेस कहाँ पे हुआ? हरिनगर शुगर मिल्स के केस में। इंडियाज जून 2025 ट्रेड पोस्चर एम्फसाइज रेस्टोरेशन ऑफ द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड द एक्शन ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज अलोन। नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ कोर्स, राइट। सो दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस न्यू फॉर्मेट एंड broader format of current affairs. Right, don't forget to like, share and subscribe, and tell me if you think that anything is going wrong or not. Have a great day ahead. Thank you.